on the online classes of Vidya Bal Gopal Senior Secondary School. In my last video, that is video session 44, what I have discussed? I have discussed exercise 8.1, question number 1 to 8. So in this video session 45, I would like to discuss the remaining question of exercise 8.1, that is question number 9, 10, 11, and after that we will discuss exercise 8.2. So have a look, exercise 8.1, question number 9. You have given a triangle ABC right angle at B. So I am drawing a triangle ABC right angle at B, and if tan is what? Tan A is 1 upon under root 3, and you know what is tan? Tan is perpendicular upon base. Tan is the ratio between the perpendicular and base. Perpendicular upon base. So theta is not given. I told you na, if theta is given, then this is your perpendicular. If theta is there, since the theta is not here, so where is A? A is here. So in front of A, the side, जो A के opposite कौन सी side है ये? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? Perpendicular, और ये आपका हो जाएगा base. I hope you understood this fact. जो भी एंगल होगा ना, उसके सामने वाला आपका perpendicular होगा, बाकी बेस इधर हाइपो वही रहेगी. अगर ये थीटा होता तो ये जो मेरा perpendicular 1 है, मैं यहाँ लिखती. Got it? So with the help of Pythagoras theorem, can you find out this one? So by Pythagoras theorem, in triangle ABC, AB square plus BC square is equal to AC square. I hope you understood. Now what is AB? AB is under root 3. Under root 3 square plus BC is what? 1 square is equal to AC square. So under root 3 square becomes 3 and 1 square becomes 1 is equal to AC square. And what about 3 plus 1? It gives 4. 4 is equal to AC square. So 2 is equal to AC. 2 ka square, it becomes 4. So 2 is equal to AC. So you can say that AC is equal to 2. Now what you have to calculate, you have to find the values of this expression and this expression. I am doing this one and this will be your homework. What is second part you will do on your own. So for first part, what you have to calculate? You have to calculate sin A, cos A and sin C. Got it? So according to rule, what is sin? Sin is perpendicular upon hypo. Cos is base upon hypo, again cos base upon hypo, and sin is perpendicular upon hypo. So according to A, if theta is A, आपका एंगल A है, A के सामने वाला क्या हो गया? Perpendicular. तो value of perpendicular is 1 by hypo is 2. Hypo is 2. In the same way cos C के according ये आपका क्या होगा? ये perpendicular है, तो बेस आपका क्या हो गया? ये एंगल C के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस आपका 1 होगा. तो 1 अपॉन हाइपो इज 2. इन द सेम वे कॉस A के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर. तो बेस क्या आपका? अंडर रूट 3. तो हियर अंडर रूट 3 by 2. एंड साइन C के अकॉर्डिंग दिस इज योर परपेंडिकुलर. अकॉर्डिंग टू C दिस इज योर परपेंडिकुलर. सो द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 3 एंड हाइपो इज व्हाट? 2. I hope you understood. बेटा जब A एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, और जब C एंगल की बात करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है. C के केस में परपेंडिकुलर बेस हाइपो, A के केस में परपेंडिकुलर बेस हाइपो. I think you understood. Got it? So what you have to calculate in first part, you have to calculate sin A cos C. बेटा इन दोनों का मतलब these twos are multiplying. sin A cos C मतलब sin A और cos C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस cos A sin C. Got it? So sin A, what is sin A? Sin is 1 by 2 into cos C is 1 by 2 plus cos A is what? Under root 3 by 2 and sin C is again under root 3 by 2. So it becomes 1 by 4 plus under root 3 becomes 3 and 2 twos are 4. So the final answer after taking the LCM 4 will come up. Then 1 plus 3, then 3 plus 1 4,
गॉट इट। सो बस वही करा है, आपको इस टाइप के एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, you have calculated the values of each and every and after that you have put in the given expression. After putting your answer will comes to be 1. आपका आंसर क्या आया? 1 आया। I hope you understood this question. Question number 10 of exercise 8.1. In question number 10 is in triangle PQR right angle at Q. So you have to draw a triangle which is right angle at Q. So Q PR. Got it? This is 90 degree and PR plus QR is 25. PR plus QR. इन दोनों का सम आपको 25 दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है. This is 5 सेंटीमीटर. Got it? So अब आप इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो. देखो PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर. Got it? तो मैं RQ की वैल्यू निकालूं. RQ can be written as 25 minus PR or not? बेटा the sum of this side and this side this is given to you 25 सेंटीमीटर. So मैंने क्या किया कि ये वाली साइड निकाल दी. आप ये भी निकाल सकते थे, कोई भी साइड निकाल लो. I have find out RQ. RQ is 25 और ये जो PR था वहां जाके नेगेटिव हो गया, तो RQ की जगह क्या लिख सकती हूँ? 25 minus PR. ठीक है. सो इन ट्राइंगल आपको किस किस की वैल्यू निकालनी? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम मींस आर क्यू स्क्वायर प्लस बाय पी टी, आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. गॉट इट? सो व्हाट इज आर क्यू? आर क्यू इज ये है. अब आपका आर क्यू क्या है? 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू. पी क्यू इज 5 स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर. गॉट इट? सो हियर कैन यू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर? व्हाट इट विल बी? a स्क्वायर. a स्क्वायर मींस 25 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस 25, ये वाला प्लस 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. आपने बच्चे कुछ नहीं किया है, यू हैव अप्लाइड द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 5 स्क्वायर 25 एंड दिस एज इट इज. सो दिस बिकम्स 625 पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. Now this PR square cancel with this PR square. 625 plus 25. 625 plus 25 is equal to 50 PR. ये जो 50 PR नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. How much is this? 650 is equal to 50 PR. So 0 से 0 cancel. 5 13s are 65. तो 13 is equal to PR. PR की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई. अब PR की वैल्यू 13 है तो QR कितना हो जाएगा? 25 माइनस 13 दैट मीन्स 12. तो RQ कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया. अब सारी साइड्स आ गई. नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट? साइन P, cos P एंड tan P. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सो साइन इज perpendicular upon hypo, base upon hypo and perpendicular upon base. So according to P, where is P? P is this. तो P के सामने वाला क्या होगा बच्चे? perpendicular. तो perpendicular की वैल्यू कितनी है? 12. 12 by 13. 12 by 13 base. P के अकॉर्डिंग बेस आपका ये है क्योंकि perpendicular ही है तो बेस ये है 5 by 13 and the last P के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर ये है और बेस कितना ही है तो 12 by 5. So I hope you understood this question and question number 10 gets over. Now in question number 11 some statements are there and you have to tell whether these statements are true or false and you have to justify your answer only. ठीक है? एक सिर्फ this is your homework. Question number 11 is your homework. मैं सिर्फ आपको इसमें से एक पार्ट बता रही हूँ कि cot A is the product of cot and A. कहते हैं cot A लिखा हुआ है
कॉट ए, कहते कॉट और ए का क्या प्रोडक्ट है? आंसर इज नो, फॉल्स। व्हाई? बेटा ए इज एंगल थीटा, जो ए है आपका वो एंगल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक वैल्यू है कॉट ए, टेन ए, साइन ए। तो कॉट और ए अलग अलग नहीं है, कॉट ए एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, और यू कैन से बेस एंड परपेंडिकुलर, ये उसमें रेशियो है। तो ये जो ए है ना ये इसी के साथ होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कॉट अलग है और ए अलग है और आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया कॉट ए आ गया, नो, दिस इज नॉट, ये ऐसा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 8.1. Come to the new concept of chapter number 8, trigonometry. The name of the new topic is trigonometric ratios of some specific angles. Angles means 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Only these types of angle you will study in 10th standard. और भी angles होते हैं when you will go in 11th standard और आप वहाँ मैथ सॉल्व करते हो तो आप और भी एंगल्स के बारे में वहाँ स्टडी करोगे, बट इन 10th स्टैंडर्ड सिर्फ यही एंगल्स है विच यू हैव टू स्टडी, गॉट इट? सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन, ये थीटा इंडिकेट्स 0 डिग्री, हियर थीटा इंडिकेट्स 30 डिग्री, थीटा इंडिकेट्स 45 डिग्री। मतलब एग्जाम में ऐसे आता है साइन 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा के प्लेस में क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक which is very beneficial for you, how to learn this table. अगर एग्जाम में ये टेबल आती है, अगर आपको ये कुछ भी गलत हो जाता है ना हल्का सा भी, तो you cannot attempt the question. ठीक है, so exercise 8.2 is entirely based on this table. So have a look. First write down 0, 1, 0. Got it? पहले क्या लिखना आपने? 0, 1, 0. If it is 0, write down 1. यहाँ 1 है, 0 लिख दो, और यहाँ थर्ड के केस में 0 है तो यहाँ नॉट डिफाइन कर दो, गॉट इट? आई एम रिपीटिंग, 0, 1, 0, यहाँ 0 है तो 1, उल्टा 1 का 0, और थर्ड केस में 0 है तो नॉट डिफाइन करना है, ठीक है? अब सिर्फ ये 3 वैल्यूज लर्न करनी है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 1/2, 1/√2 एंड √3/2, 1/2, 1/√2 and √3/2. Now √3/2 comes here, क्रॉस कर दो, ये 1/2 इधर जाएगी और ये वाली एज इट इज लिख दो। फिर से रिपीट कर लो, 0, 1, 0, यहाँ 0 तो यहाँ 1, 1 का 0, 0 का नोटिफाइड, फिर ये 3 लर्न करने हैं, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर क्रॉस क्रॉस सेम। अब 10 के लिए आपने क्या करना है? इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर, 1/√3, इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर, मतलब 1/1, 1/1, 1, इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर, तो √3/1, गॉट इट? और √3/1 यू कैन से √3 ओनली। बाकी सारे क्या होते हैं? इसके उल्टे होते हैं। तो cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, सो cosec थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, जब 1/0 होता है तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आप वहां पे क्या लिखते हो? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। Whenever the number is in the denominator and if the number is 0, always it tends to infinity. Got it? So जहां जहां 0 है, जब रेसिप्रोकल करोगे वहां इंफिनिटी लगाना, तो यहाँ इंफिनिटी, ये 1/1 1 ही होता है, यहाँ पे भी इंफिनिटी हो जाएगा। इसको देखो 1/2 का क्या हो जाएगा? उल्टा 2/1, इसका 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा? √3/1। Why? Because tan theta is the reciprocal of cot theta and cot theta you can say is the reciprocal of tan theta. तो जो tan theta की वैल्यू cot theta की उसकी रेसिप्रोकल होगी। In the same way, whatever the values of sin theta is the reciprocal of cosec theta. तो it will be √2/1, ठीक है? And here 2/√3, यहाँ 1/1 is 1, इसका उल्टा 1, ठीक है? इधर √2/1, इसका 2/1। अब देखो 0 की जगह क्या लगाओगे? इंफिनिटी। वाई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू 1/0 गोज टू इंफिनिटी, ऑलवेज इंफिनिटी होता है। और यहाँ 1 √3/1 को क्या लिखोगे? 1/√3, और इंफिनिटी से देखो इंफिनिटी बाय 1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके नीचे डिनोमिनेटर के नीचे, दैट मीन्स 1 है, तो
1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, ऑलवेज जब भी कभी इंफिनिटी से डिवाइड करते तो आंसर 0 आता है, तो ये लास्ट का क्या हो जाएगा 0. सो दिस इज हाउ टू लर्न द टेबल. गॉट इट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट पार्ट. साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री plus sin 30 degree cos 60 degree. You have to evaluate. The question is evaluate this thing. ठीक है. So how will you do? What is the value of sin 60 degree? Sin 60 degree is √3/2. Put it here. What is the value of cos 30 degree? Cos 30 degree. Cos 30 भी कितनी है? √3/2. Plus what is the value of sin 30 degree? 1/2. And what is the value of cos 60 degree? Cos 60, it is 1/2. So now √3 becomes 3 and 2 2s are 4 plus 1 1s are 1 and 2 2s are 4. So after taking the LCM 4 will come up. So 3 plus 1 4/4, that is 1. So the value of this is equal to 1. So this is question number 1 first part. I hope you understood this question. Got it? 8.2 question number 1 second part. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. Got it? So now put the value 2. tan 45 is what? 1. देखो 45 पे 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे. Why? Because tan square is there. ठीक है. Now plus cos 30. Cos 30 is what? Cos 30 is √3/2. So √3/2 square minus sin 60. Sin 60 is √3/2. So √3/2 square. Can you say that this and this get cancelled? Why? Because of the same number with opposite sign. So you can cancel out. What is left? 1 ka square 1. 1 into 2, it gives 2. So answer is 2. I hope you understood question number 1 second part. Now I am doing the third one also. In third part, cos 45 degree divided by sec 30 degree plus cosec 30 degree. Simply you have to put the value. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है. स्कोरिंग ऑल्सो यू कैन से. ठीक है. आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी. cos 45 is 1/√2. So 1/√2 divided by sec 30. Sec 30 is 2/√3 plus cosec 30 is 2/1. So 1/√2. Can you take the LCM? √3 और 1 का LCM क्या है? √3. So √3 1s are √3, 2 1s are 2 plus 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा. √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 आएगा. Got it? So फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1/√2. और बच्चे ये √3 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 2 plus 2√3. आपको पता है ना, ये इसके ऊपर जाएगा. So it becomes √3 2/√2 plus 2/6. अब यहाँ पे आप रैशनलाइज कर सकते हैं. यू कैन डू द रैशनलाइजिंग. ठीक है. हाउ विल यू डू रैशनलाइजिंग? के लिए कैसे करते हैं? √3 2/√2 plus 2/6 into 2/√2 minus 2/6 upon 2/√2 minus 2/6. आपको पता है ना रैशनलाइजिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th स्टैंडर्ड. जो भी नंबर यहाँ पे होता है वो सेम लिखते हैं पर साइन चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं ना रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर. गॉट इट? ये रैशनलाइज करा है. अब मैं इसको यहाँ इरेज कर रही हूँ. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. बेटा इसके ऊपर कर दो. ठीक है ना. इसके बाद ऊपर देख लेना 2/√2 माइनस 2/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 से and divided by. Here can you apply the identity of a plus b, a minus b? What it will be? A square minus b square. बच्चे
Got it? Quote the reason because a square minus b square is same as a plus b, a minus b. So अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, 2 अंडर रूट 6, देखो रूट 2 रूट 3 बिकम्स रूट 6 माइनस 6 इंटू 3 18, 2 रूट 18 डिवाइडेड बाय, अब 2 रूट 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका आंसर 8 आएगा माइनस, अब देखो 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ये आंसर क्या गया 24। अब कैन यू टेक 2 रूट 6 कॉमन, देखो 2 रूट 6 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, इसको देखो अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 3, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 6 तो बाहर चला गया, तो व्हाट इज लेफ्ट अंडर रूट 3, ठीक है, और नीचे क्या आ गया 8 में से 24 गए, हाउ मच इज लेफ्ट माइनस 16, तो 2 8 is 16, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा इसको, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेसिकली बेस्ड ऑन दी सिंपल अलजेब्रा यू कैन से, सिंपल सॉल्यूशन है, आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद यहाँ पे आंसर फिनिश है, ये नेगेटिव आप ऊपर भी लगा सकते थे, गॉट इट। 8.2 question number 1 fifth part I have discussed question number 1, 1, 2 and 3 part, ठीक है, 3 parts I have already discussed, question number 1 fourth part is the homework, now have a look on fifth part। so 5, what is the value of cos 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2, so in place of cos 60 I have written 1/2 and square is there, तो आपने स्क्वायर किया, प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या है, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर। नाउ हियर sin 30 इज 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2, so √3/2 स्क्वायर। so this implies that 5 1/4 प्लस 4, देखो 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर बिकम्स 3 माइनस 1/1, ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसे। हियर 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर इट बिकम्स 3/2 2 जा 4। नाउ 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1, गॉट इट। और नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 4 एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3, सो ये लास्ट क्या बनेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, 4/4, और 4/4 क्या होता है 1 होता है, कैंसिल हो गया, तो ओनली दिस पोर्शन इज लेफ्ट, ठीक है। सो हियर यू कैन टेक द एलसीएम, 4 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 इज द एलसीएम, 4 3 से 12, 5 3 से 15, 3 4 से 12, 3 4 से 12, 16 4 से 64 माइनस 12, 1 12 से 12, तो 12 1 से 12, सो फाइनल आंसर 9 7 माइनस 12 12, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 67/12 is the answer of this expression। I hope you understood beta, got it। so question number 1 gets over। now in question number 2, in question number 2 choose the correct option and justify your choice। you have given the expression question number 2 first part 2 10 30 divided by 1 plus 10 square 30। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यूज डालूंगी, कौन कौन सी, 10 30 की वैल्यू क्या है, देखो 10 30 इज व्हाट, 10 30 इज 1/√3, सो 1/√3 एंड 1 प्लस अगेन 10 30 इज 1/√3, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो 2/√3 एंड दिस बिकम्स 1 प्लस 1/3 बिकॉज द स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, so it becomes 2/√3 फाइनल, नीचे एलसीएम लोगे 3 3 plus 1,
सो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट लाइक दिस 2/√3 इनटू ये 3 ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना 3/4। तो देखो 2 2 4 और 3, आप 3 को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3। बेटा आप 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको नीचे √3 था, कैंसिल आउट करना था। सो यू कैन राइट, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट गिव्स 3 ओनली। सो √3 इट बिकम्स 3। सो आई हैव split it 3 as √3 cross √3. Got it? So नीचे क्या था 2 √3. So √3 से √3 कैंसिल, तो √3/2। अच्छा √3/2 किसका आंसर होता है? √3/2 एक है sin 60 का, √3/2 है एक sin 60 का, और √3/2 है एक cos 30 का। ये देखो cos 30 की वैल्यू भी क्या है? √3/2 है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन sin 60 है। सो आंसर इज sin 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में बेटा cos 30 डिग्री नहीं था। अगर cos 30 डिग्री होता तो मेरा आंसर cos 30 डिग्री होता। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आपने चॉइस करी थी विच विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट। 1 minus 10 square 45, 1 plus 10 square 45. You know the value of 10 45 is 1. So in place of this, can I write 1 ka square, 1 plus 1 square. So it becomes 1 minus 1, 1 plus 1, 1 minus 1 gives 0, 1 plus 1 2, 0 divided by 2, answer is 0. तो आंसर नीचे ऑप्शंस है 10 45, 10 90 डिग्री, बी पार्ट 1, सी पार्ट sin 45 डिग्री एंड डी 0। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is what? मतलब a की किस वैल्यू के लिए? a ऐसा कौन सा थीटा आपने लेना है जिससे sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाए। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ 2a क्या है? देखो sin 2a, यहाँ 2a क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है, थीटा यू कैन से। और यहाँ 2 sin a में ओनली a एंगल है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 एंड a। यहाँ sin 2a, यहाँ 2a एंगल था, यहाँ सिंपली a एंगल है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब sin a की कुछ भी वैल्यू होगी उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दे आर नॉट इक्वल, एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल, बट इन क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a both the numbers are both the portions are equal. You can say LHS is equal to RHS when a is what? a क्या होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं a को 0 डिग्री रखती हूँ, इफ a is 0 डिग्री, a को 0 डिग्री रखा तो sin 2 into 0 डिग्री, sin 0 डिग्री क्या होता है? sin 0 डिग्री पे 0 होता है, तो 2 into 0। अच्छा देखो यहाँ पे 2a, इस a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ना, sin और a ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि ये अलग एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे a से पहले 2 है, इसका मतलब इस a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। आर यू गेटिंग? आपको समझ में आ रहा है? साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 2a के साथ, लेकिन 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 into 0 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? साइन 0 0 होता है। ठीक है, और 2 into साइन 0 डिग्री, ये मैंने कौन सा लिया था? LHS था, ये मेरा RHS कंसीडर किया था। तो 2 into साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0, तो 2 into 0 is 0। When a is 0 डिग्री, जब आपका a 0 डिग्री है, then you can say that sin 2a is equal to 2 sin a, otherwise not. Why? मान लो यहाँ पे मैं a को 30 डिग्री लेती हूँ, sin 2 into 30, 2 into 30 it becomes 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और इधर से 2 into sin 30 डिग्री, क्योंकि मैंने a को क्या लिया था? a को 30 डिग्री पुट किया ना,
तो जब यहाँ a को 30 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगी, इट बिकम 60। तो ये LHS था और ये आपने RHS लिया है। तो जब RHS में आपने sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 इज 1/2, तो 2 into 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 is left. Can you say that these twos are equal? नहीं ना। So only when, ये क्वेश्चन नहीं करना, only when a is 0 degree, then you can say that sin 2a is equal to 2 sin a. I am repeating once more time. बेटा sin और a ये कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। sin a ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sin a क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन अगर मैं sin 2a की बात करती हूँ, यहाँ पे a क्या है, एंगल, यहाँ पे 2a क्या है, एंगल, तो जो a है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन sin a एंड sin 2a। यहाँ 2a एंगल है, यहाँ a एंगल है, और sin और a मल्टीप्लाई नहीं होते, sin एक रेशियो होती है, sin इज अ रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट। Fourth part you have to do on your own. This is your homework. Now I am doing the question number 3 and this question is very important. ठीक है, बहुत सिंपल है इसको करने का तरीका। What is given if tan a plus b is equal to √3? ये given है, tan a plus b √3 है और tan a minus b 1/√3, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप देखना whatever the ratio is given, अगर यहाँ tan है तो जो भी वैल्यू यहाँ गिवन है वो tan में देखनी है, अगर sin गिवन है तो जो भी वैल्यू यहाँ गिवन है वो sin में ही देखनी है। अब tan में √3 कब आता है, देखो tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है tan 60 पे, तो ये एज इट इज लिखा tan a plus b is equal to tan 60 degree. In place of √3 can you write tan 60? Why? Because the value of tan 60 degree is √3, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे साइन होता ना, तो साइन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू गिवन होती, तो साइन की वैल्यू साइन में ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ से tan रिमूव हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, a plus b is equal to 60 degree. Mark this is equation number 1. Got it? In the same way also tan a minus b is 1/√3. तो अब आपने tan की वैल्यू देखनी है 1/√3 कब आती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 आती है tan 30 पे, ठीक है। सो tan a minus b in place of 1/√3 you have written tan 30 degree. So tan से tan cancel. This implies that a minus b is equal to 30 degree. Call this equation number 2. Now you have two equation, equation number 1 and equation number 2. So now go back to chapter number 3rd, linear equation in two variable, a pair of linear equation in two variables. In that chapter you have already done elimination method. So I am solving these two equations with the help of elimination method. So you have a plus b 60 degree and a minus b is 30 degree. So can you cancel out these two? Now 2 is equal to 90 degree. So a will be 45 degree. Put a is equal to 45 degree in any equation. I am putting in 2. आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो a minus b 30 था, तो a के प्लेस में 45 रखना है, तो 45 डिग्री minus b is equal to 30 डिग्री. So this implies that 45 डिग्री minus 30 डिग्री is equal to b, क्योंकि b नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 30 इधर आके नेगेटिव। So the value of b is 15 डिग्री. b कितना आ गया 15 डिग्री और a क्या था आपका 45 डिग्री था। I hope you understood this question. This question is very important. 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ भी नहीं करना, जो भी यहाँ पे रेशियो गिवन है, अगर tan गिवन है तो जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना, वैल्यू है, वो आपने tan में ही देखनी थी। जैसे tan यहाँ √3 था ना, तो देखो tan में √3 कब आता है, tan 60 पे। So in place of √3 you have written tan 60 degree. In the same way tan की वैल्यू देखो 1/√3 कब आती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 आती है 30 डिग्री पे। So in place of 30 degree, in place of 1/√3 what you have written tan 30 degree. So tan से tan कैंसिल हो गया, a minus b 30 डिग्री आ गया, और इधर भी tan से tan कैंसिल हुआ, a plus b 60 डिग्री आ गया। आपके पास दो इक्वेशन आई, एलिमिनेशन मेथड से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
Got it? 8.2. This is the last question. Question number 4. State whether the following are true or false. Beta, you have given some statements 1 to 5, and you have to tell whether these statements are true or false and justify your answer. Means if it is true, then why is true. If it is not, then why it is not. Got it? So first is sin A plus B is equal to sin A plus sin B. This is false. Why this is false? अभी मैंने आपको बताया था sin थीटा, ये आपका पूरा क्या है, थीटा है. आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते. Got it? You cannot write sin A plus sin B. ये पूरा आपका थीटा है. A plus B is your थीटा, एंगल है. क्या है आपका? एंगल है. तो आप एंगल को सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे, मतलब sin A plus sin B ऐसे नहीं लिख सकते. So this statement is false. Second statement is the value of sin theta increases as theta increases. Second कह रहा है the value of sin theta increases as theta increases. मतलब वो कह रहे हैं कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब आप थीटा को बढ़ाते हो. मतलब थीटा बढ़ाने का मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री करा, 30 डिग्री से 45 डिग्री करा, 45 डिग्री से 60 डिग्री करा. जैसे ही आप थीटा उसको बढ़ाते जाओगे, वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, आपका साइन थीटा इंक्रीज होगा. यस. वाई? देखो यहाँ 0 था, 0 से 1 पे पहुंच गया. तो द स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज if theta increases, sin theta, the value of sin theta also increases. Here you can see 0 से 1 पे पहुंच रही है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे आंसर 1 आ रहा है. तो वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. Got it? Next, third part. In third part, the value of cos theta. In third part, the value of cos theta increases as theta increases. कहते हैं कि cos theta की वैल्यू increases. कहते हैं cos theta की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर मैं थीटा को बढ़ाती जाऊं. नहीं. देखो अगर मैं थीटा को बढ़ाती जाऊंगी तो वैल्यू छोटी होती जाती है. 1/2 क्या होता है? 0.5. और 0.5 के बाद 0 आ गया. मतलब 1 से स्टार्ट थी और 0 पे एंड हो गई. तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स. मतलब अगर आप cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी अगर आप थीटा को बढ़ाते हो, उल्टा क्या होगी? डिक्रीज होती है. cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी जब थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा. जब थीटा, इफ यू इंक्रीज थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल डिक्रीज होना शुरू होती है. आप यहाँ से देख सकते हो 0 डिग्री पे 1 थी, 90 डिग्री पे जाके वो 0 हो जाती है. ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड आई हैव जस्टिफाइड योर आंसर ऑल्सो. ठीक है, कर दिया आपका. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी मतलब थीटा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सेम हो जाएंगे अगर थीटा सेम है? नहीं. देखो यहाँ 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू 1 है और cos थीटा 0 डिग्री पे क्या 1 है. ओनली व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. जब थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा और cos थीटा सेम है. देखो आप देख सकते हो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री then you can say that sin theta is equal to cos theta, otherwise not. So ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो. ठीक है? साइन थीटा cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉल्स है. ओनली वन वैल्यू. कौन सी वैल्यू? डिग्री. व्हेन डिग्री इज 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, देन यू कैन से बोथ आर इक्वल, अदरवाइज नॉट. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. द लास्ट स्टेटमेंट 5th, cot A is not defined. Cot A is not defined. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. अगर A 0 डिग्री है, yes, in place of A, for A is equal to 0 डिग्री. कहते A की जगह अगर 0 डिग्री लिख दो, cot 0
0 डिग्री, एंगल इज गिवन, तो cot 0 डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, यस है ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. I hope you understood exercise 8.1 and exercise 8.2. The exercise 8.2 is based on the concept trigonometric ratios of some specific angles. If you know these angles, then with the help of these angles you can find out the questions of exercise 8.2. I hope you understood. Whatever your query, through portal you can ask me, और जहाँ पे भी आप वीडियो देखते हो वहाँ पे एक कमेंट बॉक्स होता है, सो ऑन कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू वीडियो you can ask the query. Got it? And I hope you understood the concept of trigonometry very well, and have a good day.